Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Simar Lakhwani for you guys. And today we are going to continue with our second gas law. As in my previous video, we had a discussion about the first law, that was Boyle's law, and that we learned that if our pressure will increase, then our volume will decrease, and if our pressure will decrease, our volume will increase. So that was the thing we learned. And just for a revision, that's more like P, oh my god, this is like P is inversely proportional to V, which is pressure is inversely proportional to volume. So that was the Boyle's law that you guys need to remember. Okay, so I'm gonna write it too. Boyle's law. Okay, so just for some clarity. Other than that, I've written things so big, right? I need to keep them sure. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि this was Boyle's. ठीक है, so now we will move towards the Charles law. Okay, it's not so important that you guys remember the names of laws, but you can like the theory and whatsoever the law tells, you guys can remember. Like, you don't need to remember like कि किसका law था, like Charles का law. So the Charles law tells us that if, like everywhere we have this if coming, so it tells us that if our volume will increase, okay, if our volume will increase, so our temperature will also increase. For instance, if I have this bucket, okay, keep it as like a container, and we have some gas here, the gas particles I've like created, and what I did, I just gave it some heat, I gave it some temperature, I gave it some heat, right, some heat or like temperature. जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर दूंगी, what will happen, the volume will start increasing. So the volume will start increasing. ठीक है, so the particles will move or the gas will move out of the container, the volume will increase. So Charles law tells all about this, that if our volume will increase, then our temperature will also increase. Okay, for that we also have some equations. That's volume is directly proportional to temperature, which means अगर volume increase होगा तो temperature भी होगा increase, अगर volume कम होगा तो हमारा temperature भी कम हो जाएगा. So I hope this is clear. And then we have something, if we are doing an experiment, like for instance, if we are going to a lab and if we're going with something happening, so we have equation for that is like V1 upon V2 equals, sorry, I have blunder, T1 equals to V2 equals to T2. Okay, so I hope this one is clear to you guys. How we will do this, let's get into it. So for instance, let's take okay, initial stage ले लेते हैं अभी पहले. So in the initial stage, it tells us that our volume is, it tells us that हमारा जो volume है वो 20 है, ठीक है, एंड हमारे पास जो टेम्परेचर हमारा है, ठीक है, हमारा टेम्परेचर है वो भी हमारे पास आ गया है 40 आ गया हमारे पास टेम्परेचर. दी अदर स्टेज हमारे पास बोलता है कि अगर हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या था कि अगर वॉल्यूम बढ़ा तो हमारे पास टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम जब 20 था, मतलब वॉल्यूम कितना होगा कि वो 20 में बढ़ गया तो 10 हो गया, तो 10 चला गया, इसका 20 बढ़ गया. वॉल्यूम 2 एंड टेम्परेचर 2, वॉल्यूम 2 कितना था, वॉल्यूम 2 भी 20 हो गया, तो अगर इसको 40 कर लेंगे, ठीक है, या इसको 20 कर लेंगे,
भी हमारे पास वही चीज़ आएगी। अगर उसकी इक्वेशन में अगर वो चीज़ रखा जाएगी v1 इक्वल्स टू t1 equals to b2 equals to t2. So v1 is something what 20 and it's 40 and it's 40 upon 20. I think so it's not something like this. Wait, I'm like what's this? Okay, it's color something. ओके ये भी हमारे पास 20 होगा, ये भी हमारे पास 40 ही होगा बिकॉज वो दोनों सेम हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इनिशियल स्टेज पे हमने क्या दिया, वेट व्हाट वी डिड in the initial stage, on the initial stage for instance we have a balloon and हमने उसको ना वॉल्यूम, उसको हमने टेम्परेचर दिया। ठीक है, उसको टेम्परेचर हमने दिया। इनिशियल स्टेज में क्या हुआ, इनिशियल स्टेज में उसका वॉल्यूम था, उसका टेम्परेचर भी मिनिमाइज था, मतलब वॉल्यूम इसका ज़्यादा था और टेम्परेचर भी इसका ज़्यादा ही था उसके लिए। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने एक स्टेज लिया जिसमें हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर हमारा वॉल्यूम भी बढ़ गया। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू अस। ठीक है, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। सॉरी 20/40 आ गया हमारे पास। ठीक है, 1 ज़ा कट गया, 2 ज़ा 1/2 0.5। ठीक है, तो 0.5 हमारे पास दोनों साइड आ रहा है विच मीन्स कि यस आवर इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, सो आई थिंक वी शुड नॉट गो सो मच इन द डेप्थ ऑफ दिस, बट वी शुड ओनली अंडरस्टैंड कि चार्ल्स लॉ में ये बताता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। दैट्स इट, नथिंग so big. ठीक है, then we have Gulick's law, something like that, Gulick's something, I cannot pronounce, Gulick's law something। ठीक है, जो ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता है, विच टेल्स अस कि अगर हमारे पास प्रेशर जो है इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, अगर प्रेशर किसी चीज़ में इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर भी होगा। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास एक बलून है, उसका मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी तो उस बलून के अंदर जो प्रेशर होगा वो भी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर नहीं दूँगी तो प्रेशर जितना था वही रहेगा। सो प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट्स इट। देन हमारे पास आता है एवोकाडोज लॉ। सॉरी, एवोकाडोज। तो द एवोकाडोज लॉ हमें ये चीज़ बताता है कि इट टेल्स अस कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर। सो दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब वो बोलता है कि हमारे पास कि अगर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू टेक अ बास्केट, अगर आप ऐसा कुछ ऐसा लेते हैं, उसके अंदर गैस है, ठीक है, उसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया उस गैस का तो पार्टिकल्स नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे, येस और नो, येस। तो इट्स जस्ट दैट कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे, विच मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। अब नाउ समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर हेयर इज लाइक कि हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है। मोल इज़ अ क्वांटिटी। ठीक है, मोल एक क्वांटिटी है जो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर होता है, जो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज किया। 1 मोल ऑफ अ गैस इन केमिस्ट्री इज 24 dm³। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हुई थी वो फिक्स हो गई, 24 dm³ हमारे पास वैल्यू फिक्स हो गई, तो हमारे पास वॉल्यूम भी फिक्स हो गया। मतलब इतना वॉल्यूम होगा तो 24 dm³ पे आ गया। अगर 2 हो गया, 24 का डबल कर देंगे, 24 + 24 + 48 dm³। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ जाएगा, right? So these were some avocados, some Gulick's laws and some Charles laws. So I hope this is clear. It is quite easy. You need to not go in too much depth. It's just so easy. Then हम लोग पढ़ेंगे about I think so we should move into the second thing.